Okay, so till now, is it clear to all of you how to record the or how to transfer the entries from journal to ledger? Now, simple rules we have to understand. We have to prepare a separate account in ledger. Then, once an account is being opened for a person or thing, all the transactions which are related to that person or thing will be recorded in that account only. It means we will have only one account for each person and each thing. We will not have two separate accounts for any person or anything. Okay. Third basic rule is same. The account which is debited in general will be debited in ledger, and the account which is credited in general will also be credited in ledger. Debited in general will be debited in ledger means if some account is debited in general, it means we will record the transaction in the debit side of that account. Credited in general and credited in ledger means if an account is credited in ledger in general, we will record that transaction in the credit side of that account. है ना? Because now we have two sides, debit side and credit side. So whatever account is debited in general, in that account we will record in the debit side, and if any account is credited in the general, we will record in the credit side. But if we are preparing cash account, in cash account, within the cash account, we will not write cash account, but we will write in the name of the other account which is coming along with the cash account, opposite side of the cash account. So for example, cash account debit to Ramlal. So in cash account, we will write to Ramlal, and in Ramlal's account, it will be credited. So we will write by cash account. Okay. Furniture account debit to cash account. So furniture account is debited. So when we will prepare furniture account, in furniture account we will write in the debit side to cash account, and in cash account we will write in the credit side by furniture account. This way, this accounts will be interchanged. Is it clear, Sairam? Yes, sir. सर ये सिर्फ कैश में होता है या हर ट्रांजैक्शन में आपको? In every transaction, every time, all transactions, whatever transactions we have recorded, they all will be transferred to general, to ledger from general. All transactions, maybe cash, maybe credit, and all entries will have two debit and credit. In each entry, will have debit and credit or not. Whatever entries we have passed in general, they Yes, all will sir. have debit and credit. So it is for all types of transactions: cash transactions, credit transactions, assets, liabilities, expenses, incomes. All will be transferred from general to ledger. Okay. So now again let me share the screen, but number is very less. Only 13 students are there. What happened? Where are the remaining students? Here is the, let me see, Aditi Soni, Bhumi Jain, Divya Kaka, Kanak Gurjar, Kushi Gupta, Muskan, Purvi, Prakhar, Priyansu, Sambhav, Shivam, Vaishnavi Bhargav and Vaishnavi Gurjar. उसके बाद कोई नहीं है. So many students are absent, and that is not good. Most of the students should attend the class. So do you feel that we pass the time in the class? आपको ऐसा लगता है कि हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं? Any of you feel like that? Sairam? No, sir. Yes, sir. Okay. So अच्छा, किसी को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं समझ में आता क्या अटेंड करना? Why should we attend if we are not understanding anything? Sairam? No, sir. कभी लगता है ऐसा कि नहीं ऐसे क्या करना, कुछ नहीं होता उससे अटेंड करने से, हम तो nothing is there. Okay, so now let us begin. Same topic. I am here again back on the same page that we were discussing. So these are the rules we have discussed, we have written. No. Rules of posting or how to record the transactions from journal to ledger. Now let us take an example to make you understand. तो मैं ये example तो यहाँ से उठा रहा हूँ. इसमें काफी स्पेस कवर कर लिया बीच में. It will be removed.
First you note one or two transactions, then we will discuss, we will try to understand. So note the transactions. Number one, purchase goods for cash. Purchase goods for cash rupees 30,000. Purchase goods for cash rupees 30,000. Number two, paid rent rupees 2,000. Paid rent rupees 2,000. And number three, furniture purchase for rupees 50,000. 10,000. 10,000. Furniture purchase for rupees 10,000. These are three transactions. So now quickly pass the entries for these three. आप एंट्री करो इन तीन ट्रांजेक्शन की कर सकते हैं ना तरंगो जनरल एंट्री. All of you pass general entries for these three transactions. Sairam, going entries बोलो. Yes, sir. First entry Yes, बोलो. sir. Purchase account debit to cash. Purchase account debit to cash account. ठीक है. दूसरी एंट्री बोलो. कौन बताएगा आप लोग? Rent account debit to cash account. Okay, rent account debit to cash account. Next बोलो. Furniture हाँ जी. account debit to cash account. Furniture account debit to cash account. अच्छा ये बोर्ड कितना दिख रहा है आपको? देखो यहाँ बोर्ड दिख रहा है कि Yes, sir. Yes, sir. कितना दिख रहा है? ये दिख रहा है यहाँ तक. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कितना? नहीं sir. यहाँ तक. No sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. और यहाँ नीचे यहाँ दिख रहा है कि नीचे इधर. No sir. अच्छा तो कुर्सी तो ऊंचा करने से कोई फायदा नहीं, ऐसे रखते हैं. देखते हैं अभी. अब देखो यहाँ दिख रहा है क्या? Yes इधर sir. तो दोनों ही दिख रहा है. Yes, sir. इसको थोड़ा ऊपर भी दिख रहा है क्या? यहाँ नहीं. इधर दिख रहा है क्या? ये सब चलो ठीक है, इसका यूज करते हैं. फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज व्हाट? Purchase goods to purchase account debit to cash account. So now let us see. Two accounts are needed here. Purchase account. Now this is the account format. Here are the columns, 8 columns. है ना? Second account we need, that is the cash account. These two accounts are involved in this transaction. Purchase account, cash account. Sir. Can you see this? हाँ जी.
सर आप जहाँ लिख रहे हो वहाँ का नहीं दिख रहा। ये नहीं दिख रहा है यार। नो सर। इधर इधर को कौन सा? अभी देखो, अभी दिख रहा है क्या? सर ऊपर का पूरा बोर्ड दिख रहा है। कौन सा? ऊपर दिख रहा है सर अब पूरा? दिख रहा है, अब दिख रहा है। ये दिख रहा है ना पूरा? यहाँ पे दिख रहा है क्या? ठीक है, सही रहा। अब नाउ वी हैव टू अकाउंट्स। ये हो गया ना आपका? फर्स्ट एंट्री परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. सही रहा। So Yes, which sir. account is debited in this entry? आपको समझ में अकाउंट का फॉर्मेट है, दो साइड है ना, टू साइड से। कौन सा साइड है? डेबिट साइड। दिस साइड इज द क्रेडिट साइड। दिस साइड इज डेबिट साइड, दिस साइड इज द क्रेडिट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। दिस इज द कॉलम ऑफ डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। Date, this is the column of date, this is the column of particulars, ये है जनरल फॉलियो, अमाउंट है ना। सेम कॉलम we will have on the credit side, date, particulars, ये है अमाउंट। these are the columns है ना। I have less space, so I cannot write names in all the accounts. You understand from here? ठीक है। So in this entry is purchase account debit. So purchase account is debited. It means in purchase account we have to record in the debit side, and this is the debit side. This is transaction number 1. So in purchase account we have to record in debit side, but in purchase account we will not write to purchase. In place of purchase account we will write the corresponding account which is coming along with the purchase. Corresponding account is cash account, है ना। कौन सा अकाउंट कर रहा है परचेज के साथ में? कैश अकाउंट। सो टू कैश अकाउंट अमाउंट इज 30,000, okay, debit side. And in the same entry second account involved is cash account which is credited. Cash account is credited, it means in the cash account we have to record the transaction in the credit side. And credit side in cash account we will not write cash account in cash account, but we will write the account which is coming opposite of cash account. So that is the purchase account. That is 30,000. So this is the posting of entry. Is it clear to all of you? Yes, sir. हमें पूर्वी समझ में आ गए? यस सर। पूर्वी का ठीक है। अब उससे एक चीज और समझ में आ रही है आपको ना, अंडरस्टैंड ये पते जगह बनाया सो परचेज अकाउंट कैंडिडेट का परचेज किया गुड्स का, और क्या यूज किया परचेज करने के लिए? कैश परचेज। समझ में आ गया इससे आपको? This is the purchase of goods and it is a cash purchase. And here you can understand this is cash account. Credit side means cash paid, and this cash is paid for what? This is paid for purchase of goods. And next transaction क्या है तो दीदी पढ़ो। सर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Okay, rent account debit to cash account. Which two accounts are involved? सर रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब उनमें से कोई हमारे पास ऑलरेडी है इधर? कौन सा अकाउंट है हमारे पास अभी? कैश अकाउंट। हाँ, कैश अकाउंट वो नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना। बोला एक अकाउंट एक ही वो बनेगा। तो नया अकाउंट कौन सा है? रेंट अकाउंट। ठीक है, वी डोंट हैव रेंट अकाउंट, प्रिपेयर रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट बना दीजिए, सेम कॉलम्स, सेम रूल, सेम प्रोसेस।
अब देखो रेंट अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ, एंट्री में क्या किया रेंट अकाउंट, डेबिट। डेबिट। रेंट अकाउंट में ओपन लिखेंगे डेबिट साइड में, है ना, दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ रेंट अकाउंट, बट रेंट में रेंट नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उसका अपोजिट वाला अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 2000, एंड सेकंड अकाउंट कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैश के अकाउंट क्या है, बाय रेंट। रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट, समझ गए आपको आपको ये? यस सर। अब तीसरा ट्रांजैक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सर परचेज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर फर्नीचर, नहीं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड इट विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, now we will need furniture account, this is furniture account, दिख रहा है क्या आपको फर्नीचर अकाउंट, यस सर। फोर्थ अकाउंट फर्नीचर अकाउंट बना दें, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट। फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड और डेबिट, फर्नीचर के डेबिट में आएगा बट फर्नीचर नहीं आएगा, क्या आएगा, टू कैश अकाउंट 10,000, अब कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो कैसे कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी हमारे पास है, उसी में लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर अकाउंट 10,000, ठीक है, कितना समझ में आ गया आप लोग को, यस सर। डायग्राम, यस सर। अब ट्रांजैक्शन ऑन लिखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000, एक ट्रांजैक्शन ऑन लिखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000, 40,000 कर लो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 40,000, एंट्री बताओ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अब सेल्स। ये दिख रहा है क्या सेल्स अकाउंट आपको, मैंने लिखा हुआ दिख रहा है ऊपर, नो सर। नहीं दिख रहा, तो क्या करूं मैं, परचेज अकाउंट को मिटा दूं फिर, ठीक है, यस सर। कहाँ लिखेगा आपको, क्या करना है, इसको थोड़ा उसको करता हूँ, देखिए तो लिखे अगर जाएगा ये तो बस, ठीक है, तो यही बनाता हूँ परचेज अकाउंट की जगह, दिस इज सेल्स अकाउंट, अब तो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, सेल्स अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, और दूसरा अकाउंट क्या है, परचेज कैश अकाउंट ना, तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट में डेबिट में आएगा, लेकिन कैश में कैश नहीं आएगा तो क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट 40,000, और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में आएगा बाय कैश अकाउंट 40,000, ठीक है, अभी कितने लोग को समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, सर। सर हम, हाँ सर वो बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, क्या कर सकता हूँ, देखते हैं जितना होगा उतना, अभी देखो, अभी देखा गया, आप देखो, हाँ भाई, अभी दिख रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है।
थोड़ा थोड़ा दिख रहा है सर। अभी ठीक है, हम इस पे करेंगे तो थोड़ा नहीं दिखेगा ऐसे, प्रॉब्लम उसका कैमरे की लिमिट है ना, तो थोड़ा सा उतने दिखेगा। नाउ वी विल कंटिन्यू ऑन दिस। अब एक ट्रांजैक्शन लिखो आप इसमें, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फिफ्थ वन, received rupees 9,500, received rupees 9,500 from Dinesh and discount allowed rupees 500. डिस्काउंट अलाउड ₹500। ठीक है, एंट्री क्या होगी इसकी? एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट $9,500। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट $500 to Dinesh। $10,000। Is this clear? Entry is clear to all of you? Sairam, ये तो दिख रहा है ना? यस सर यस। ओके, अब इसमें क्या है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। होता है ना आपको, एक डेबिट होता है, दो डेबिट है, एक क्रेडिट है, या दो क्रेडिट है, एक डेबिट है, तो दैट इज कॉल्ड ए कंपाउंड एंट्री, है ना। एंट्री विच टू डेबिट्स और वन क्रेडिट, और टू क्रेडिट्स और वन डेबिट, और मेनी डेबिट्स एंड वन क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड एंट्री। अब इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे लेजर में? अभी तो आपको बताया कि जो अपोजिट में आ रहा है वो आ जाएगा, वहाँ यहाँ भी सेम रूल है। देखिए अब इसमें आइडेंटिफाई हाउ मेनी अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं? 3 अकाउंट है। पहला कौन सा है? कैश अकाउंट। ठीक है, सीधा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हुआ इसमें? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट हुआ ना कैश अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ? कैश अकाउंट किस साइड में लिखेंगे ट्रांजैक्शन? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट कैश अकाउंट डेबिट साइड। तो कैश में डेबिट में लिखेंगे 2, लेकिन कैश में कैश नहीं लिखेंगे, उसके अपोजिट में क्या आ रहा है? कैश के अपोजिट में क्या आ रहा है? कौन सा अकाउंट आ रहा है? डिस्काउंट। वो डिस्काउंट अपोजिट में नहीं, ध्यान रखना, वो डेबिट है दोनों, तो सेम साइड है। अपोजिट साइड कौन सा है? दिनेश। वेरी गुड सर दिनेश आ रहा है। दिनेश। ठीक है, दिनेश लिखेंगे। अब दिनेश तो लिखेंगे, लेकिन कैश का अमाउंट कितना, ध्यान रखना। कैश का अमाउंट, हाँ, कैश में लिखेंगे 9,500। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9,000। ठीक है, अब दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है उसमें एंट्री में? वो है डिस्काउंट अकाउंट, है ना। तो डिस्काउंट अकाउंट बना दिए, नो प्रॉब्लम। ये डिस्काउंट अकाउंट बना दिया। डिस्काउंट अकाउंट क्या हुआ एंट्री में? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। 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 तो डिस्काउंट अकाउंट में किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे 2, लेकिन डिस्काउंट में डिस्काउंट नहीं लिखेंगे। डिस्काउंट का अपोजिट में क्या आ रहा है? दिनेश ना, डिस्काउंट के अपोजिट में भी दिनेश आ रहा है, इसमें भी दिनेश आ जाएगा। 2 दिनेश। अमाउंट कितना डिस्काउंट का? 500। डिस्काउंट अकाउंट में 500 ही लिखेंगे, ध्यान रखना 500। ठीक है, समझ में आ रहा सबको जी? अब तीसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है आपका? दिनेश। ठीक है, तो दिनेश का अकाउंट बना दीजिए। दिस इज दिनेश। ठीक है, डिस्काउंट दिनेश क्या हुआ? दिनेश का अकाउंट डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ? क्रेडिट। क्रेडिट हुआ। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे दिनेश में बाय, लेकिन दिनेश में दिनेश नहीं लिखेंगे। दिनेश के अपोजिट में क्या आ रहा है? सर कैश और कैश एंड डिस्काउंट। दिनेश के अपोजिट में दोनों आ रहा है, दोनों आ जाएंगे इधर दिनेश के अकाउंट में। बाय कैश अकाउंट
कैश अकाउंट में कैश का अमाउंट लिखो आप 9,500, कैश में कैश आ गया और डिस्काउंट में डिस्काउंट आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट का अमाउंट है 500, ये आ गया। अब डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए, देखो आप, तो दोनों अकाउंट मिला के कितना डेबिट किया आपने? 10,000, 9,500, इसमें भी 500, 10,000 में भी कितना हो गया? 10,000 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री। कैसे पोस्टिंग करना है कंपाउंड एंट्री की? इस तरह से। कोई कंफ्यूजन कोई इसमें आपको? किसी को कंफ्यूजन तो पूछो, ठीक है। तो दिनेश इन दोनों में चला गया क्योंकि वो दोनों के अपोजिट में आया था और वो दोनों दिनेश के घर में चले गए। दिनेश वेंट इन द हाउस ऑफ बोथ एंड बोथ केम टू द हाउस ऑफ दिनेश, है ना, बट विद फॉर देयर ओन अमाउंट, अपने अपने अमाउंट के लिए आएंगे, ध्यान रखना इसका जितना अमाउंट है, ठीक है। अब एक और ट्रांजैक्शन लिखो, ट्रांजैक्शन नंबर 6। Ram started business with cash rupees 30,000, 3 lakh कर दो, कैश रुपीज 3 लाख, फर्नीचर रुपीज 2 lakh, एंड बिल्डिंग रुपीज 5 lakh। पास द एंट्री, एंट्री करो। Sir, cash account debit, furniture account debit, building account debit to capital account. Very good, है ना। So this is the entry, cash account debit, how much cash? 3 lakh, है ना, cash account debit 3 lakh। Second asset invested is the furniture, furniture account debit 2 lakhs. $2 lakh। लाखों का हिसाब किताब तो मिनटों में कर देते हैं, कुछ लगते नहीं हमारा, है ना। और उसके बाद है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5 lakh. $5 lakh, ठीक है। इन सबको मिला के क्या बनेगा? To capital account 10 lakhs. ओके, टू कैपिटल अकाउंट 10 lakhs. ठीक है, 10 लाख रुपीस कैपिटल हो गई आपकी। अब आप सोचो इसमें, हाँ जी, ये एंट्री में किसी को डाउट, किसी को कंफ्यूजन? राम, No, sir. how many accounts are involved in this entry? 4. 4. 4 accounts. And this is a simple entry or compound entry? Compound entry. Sir, compound. Compound. Why is it a compound entry? Sir, because more than one entry is there. Okay, good. So 3 debits and 1 credit, है ना? That's why it's a compound entry. So we need to prepare 4 accounts. Let us prepare 4 accounts. समझिए दोबारा, जिसको नहीं समझ में आया और समझ लीजिए। पहले तो हो गया आपका, मैं आज क्यों करा रहा हूँ आपको ये, क्योंकि अभी आपके पास 2 दिन का गैप है ना। कल 15 अगस्त है और परसों जो है आपका संडे है, तो 2 दिन क्लास नहीं होगी। सो यू कैन प्रैक्टिस दिस जनरल एंड लेजर, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद एक ही चीज बचेगी, इसमें बैलेंसिंग बचेगा, हाउ टू बैलेंस द अकाउंट्स, वो बचेगा। तो हो सकता है अभी बता दो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, बट अप टू दैट यू कैन प्रैक्टिस। तो ये हमारा बन गया कैश अकाउंट, पहला अकाउंट है कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है? एंट्री में देखो क्या हुआ है, कैश अकाउंट Debit हुआ है. Debit. इसका मतलब हुआ कैश अकाउंट में किस साइड में लिखेंगे ट्रांजैक्शन? डेबिट साइड में, है ना। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट, हाँ, कैश के अपोजिट में आ रहा है कौन सा अकाउंट? कैपिटल Capital account. ना, इसलिए मैंने अपोजिट वर्ड यूज किया है, क्योंकि वो फर्नीचर भी आ रहा है
बिल्डिंग भी आ रहा है, ये तो सब एक साथ आ रहे हैं, सेम साइड में है, ये तो सब एक ही परिवार के लोग हैं। अपोजिट में कौन आ रहा है? कैपिटल अकाउंट। इसमें आ गया टू कैपिटल अकाउंट। बट कैपिटल में अकाउंट तो लिखेंगे, बट अमाउंट कैपिटल का नहीं लिखेंगे आप। अमाउंट किसका लिखेंगे? जो अकाउंट आप बना रहे हो। कौन सा अकाउंट है? कैश। तो कैश का अमाउंट कितना है? कैश अकाउंट 3 लाख। ठीक है, कैश अकाउंट में कैश का ही अमाउंट आएगा, कैपिटल का नहीं आएगा। लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगा कैश का। दूसरा अकाउंट बनाया आपने फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट को भी क्या किया? डेबिट किया। तो फर्नीचर के भी डेबिट साइड में लिखेंगे। फर्नीचर के अपोजिट में भी क्या आ रहा है? कैपिटल अकाउंट। तो इसमें भी आ गया टू कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट है 2 लाख। ठीक है, थर्ड अकाउंट हमने बनाया बिल्डिंग अकाउंट। This is also debited, so we will write in the debit side of building account to capital account again, because capital account is coming against the building account also. Its amount is rupees 5 lakh. Okay. Now fourth account we need, that is the capital account. This is capital account, and capital account is debited or credited? Credited. Capital account is credited, so we have to write in the credit side of capital account, है ना। And 3 accounts are coming opposite of capital account. इसके अपोजिट में 3 अकाउंट आ रहे हैं, वो तीनों इस पे आ जाएंगे। बाय कैश अकाउंट, ठीक है, इसका अमाउंट है 2 लाख। सर 3 लाख। 3 लाख, ओके 3 लाख। कैश अकाउंट 3 लाख। बाय फर्नीचर अकाउंट, amount is 2 lakh. Okay. And third one is the building account. By building account, amount of building is 5 lakh. Okay, this is clear to all of you. साई राम, आप किसी को डिफिकल्टीज में समझ में आ गया पोस्टिंग कैसे करना है? इट इज सिंपल और नॉट? आसान है पोस्टिंग करना। तो मैं आपको पूरे स्टार्ट से क्या बोल रहा था, बेसिक चैप्टर कौन सा हमारा? सबसे पहले हमको क्या समझना चाहिए? व्हाट इज द बेसिक थिंग, दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन जनरल। अगर वो आपको समझ में आ गया तो शुरू हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द पोस्टिंग फ्रॉम कंपाउंड एंट्रीज। ओके, सो अभी आप इतना प्रैक्टिस करो, एक साथ नहीं भागेंगे, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। सो यू ट्राई टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स। नाउ लास्ट पार्ट इज लेफ्ट, दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, है ना। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मतलब होता है कि इसको इक्वल करना। बैलेंसिंग करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम वी बैलेंस द अकाउंट्स। बैलेंसिंग मींस दैट वी सी व्हिच साइड इज ग्रेटर। जैसे इस अकाउंट में, कैश अकाउंट में किधर अमाउंट लिखा है? डेबिट में लिखा है, और क्रेडिट में तो कुछ है नहीं इसमें। तो इसका बैलेंस हो गया इस अकाउंट में 3 लाख का बैलेंस है कैश अकाउंट में। अगर कोई हमसे पूछता है कि हमारे पास कितनी कैश है आज, तो क्या बोलेंगे हम लोग? व्हाट इज द कैश बैलेंस? हमारे पास कैश है 3 लाख, है ना। फर्नीचर कितने का है? तो बोल सकते हैं फर्नीचर अकाउंट क्या दिखा रहा है हमारे पास कि फर्नीचर कितने का है। फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस हमारे पास क्या है? बैलेंस सीडी। अभी आप लिखना नहीं है तो समझाऊंगा कंसेप्ट क्यों लिखा, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। यू डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट राइट एनीथिंग। अभी तो पहले आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, वो पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा तब आप लिखना क्या लिखना है, क्या वर्ड यूज करना है, दैट आई विल टेल, है ना। अब कैपिटल अकाउंट में देखो तो क्या हो रहा है। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ये अमाउंट है, डेबिट में कुछ नहीं है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा आपका? इधर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, कैपिटल हमारे पास कितनी टोटल मिला के देखें तो भी 10 लाख रुपीस। तो ये आपका बैलेंसिंग है, दैट वी विल डिस्कस लेटर।
in the other coming classes that we will continue. No problem in that. That is very easy task to do. By that time, you try to understand how to pass the entries, and without passing the journal entries, also you can prepare ledger accounts. जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको जनरल करने की जरूरत नहीं है. अगर अकेला लेजर का क्वेश्चन है, ओनली लेजर अकाउंट्स आर आस्क्ड, सो यू डोंट नीड टू प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, है ना. उसके बिना भी कर सकते हैं, मन में आप एंट्री करेंगे और अगर नहीं पूछा आपसे तो बनाने की जरूरत नहीं है. दैट कैन यू डेवलप एट द लेटर स्टेज. ठीक है. सो फॉर नाउ दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. So we discuss how to post the transactions from journal to ledger, how to post the simple entries, and how to post the compound entries from journal to ledger. Okay, is it clear? So now Yes, I am stopping sharing and coming back to the meet. Okay. So only 12 students are there. What happened? I am surprised. We are discussing a new topic and it's very interesting topic, not boring. Because now you have got some. अब आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं? आपको अच्छा लगने लगा होगा ना, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट आपने सीख लिया, समझ में आने लगा. Terms are not new, things are not new for you now, है ना? So now you must have started enjoying all these things or not, Sairam? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा डर था ना सब सब्जेक्ट का कि क्या होगा कैसे होगा. That now will be reducing. yes, sir. ना. अब ऐसा लगता है ना कि हमारा अपना ही जाना पहचाना सब्जेक्ट है. पहले तो इतना कि पता नहीं क्या करेंगे, कैसा होता है ना. इट इज वेरी मच रिलेटेड टू लाइफ आल्सो. अब देखते रियल लाइफ में जो हो रहा है दैट इज हैपनिंग हियर. कुछ नया नहीं है इसमें. व्हाटएवर इज ऑलरेडी हैपनिंग आउटसाइड आवर फैमिलीज दैट वी सी. और जिनके घर में बिजनेस है उनके लिए तो और भी आसान है. दे कैन सी इट प्रैक्टिकली दैट इज हैपनिंग देयर इन देयर शॉप्स और हाउसेस और बिजनेसेस दैट दे कैन सी, है ना. And we also deal with that. We all are, at least we all are customers. So we go to market, we purchase, we know money, we know bank, we know all these things, and very much we are familiar of all these things. So it will be very interesting, very useful, and very practical also, you know. And we will discuss everything, whatever is in our syllabus. Nothing will be left, you know. And be sure that we will do everything. जो हमारा सिलेबस में हम पूरा पढ़ाएंगे उसको. Only thing that is there, we are not in contact directly of each other, so we can't observe you directly. So that is your responsibility, greater responsibility, that you be honest towards yourself, and whatever you are discussing in the class, studying in the class, practice it, learn it. उसको याद करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है. That you have to do by your own. क्लास में तो हम लोग बोल देते थे क्वेश्चन सॉल्व करो, होमवर्क करो. सामने आपको देख रहे हैं तो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, दैट वी कैन आइडेंटिफाई. बट अब आपको जिम्मेदारी ज्यादा है, आपको ईमानदारी से सॉल्व करना है. और इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन यू हैव टू शेयर इट विद अस, डिस्कस विद अस व्हाटएवर इज योर प्रॉब्लम. और किसी से भी सॉल्व करो, अपने फ्रेंड से मिलके आपको प्रॉब्लम सॉल्व होती है, नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना. आपको आपस में बात करके आपकी समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम, दैट इज नो प्रॉब्लम. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, है ना. वो सॉल्व होना जरूरी है. अगर कोई चीज आ भी नहीं रही है और आप किसी से पूछ नहीं रहे हो, दैट इज बिग प्रॉब्लम. तो नहीं आ रही है तो पूछना है, डोंट हेजिटेट. शर्म करने की बात नहीं है, सब हमारी फ्रेंड है, सब हम साथ वाले लोग हैं. यू आर लर्नर, आई एम ऑल्सो ए को लर्नर. मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ बहुत सारी चीजें, मुझे भी कुछ नहीं आता है मान के चलो. तो डोंट हेजिटेट, है ना. तो हम सब मिलकर ही सीख रहे हैं. वी आर को लर्नर्स, so don't hesitate in asking. It's not wrong to ask questions. It is very matter of proud that we have the courage to accept that we are facing difficulty in this area, and we are asking. No problem in that. We all are here for that. ठीक है. तो उसमें डरने की या शर्माने की कोई बात नहीं है. I will not scold you for anything. I promise you. And I will be happy if you ask the questions. No problem in that. है ना. I will try my best to answer your questions. ठीक है. So now I think time is over. Okay, so I am stopping. You can leave the meeting. I will stop the recording. Sai Ram, Sai Ram. Sairam sir. Sai Ram.